Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'll begin this session. Hello and welcome everyone. Thank you for taking the time to join us today. My name is Aisha Mahmood and I am the ETP STP coordinator at Association of Muslim Professionals, abbreviated as AMP. Rahil sir, I think my screen is visible to everybody. Yes, it's completely visible, ma'am. Okay, thank you so much, sir. So, AMP is a non-profit organization with an on-ground presence in more than 140 active chapters spread across 26 states in 20 countries with almost 6,000 active members. AMP mainly works in three domains: education, employment, and empowerment. AMP has many achievements to its credit under its main flagship projects and keeps adding new ones as the need arises. But before discussing the flagship programs, I would like to explain about the vision and the mission of AMP. It was to establish a connect, establish such as organization which will connect the educated, well established people of our community, of our society, with those who are less privileged, who got less chances to establish themselves or to get education or to get good jobs. So we are creating a kind of bridge between those. Moving forward, I will explain the flagship programs of AMP. The first one is School Development Program, or SDP. SDP has sessions for all stakeholders in the education field. Second comes in this category is Employment Assistance Cell, or EAC. It was launched in 2014. It conducts job fairs and job drives, and it also conducts employability training programs in colleges, for which we all are here today. Under skill training program, STP, we have company tie-ups, we do candidate mobilization, and skill development courses are also undertaken by EAC here. So far, EMP has conducted more than 40 job fairs and around 250 job drives, bringing job seekers and corporates together and facilitating the placement of more than 15,000. So, AMP has supported more than 200 poor and unemployed with its self employment schemes in the past 5 years. AMP is in partnership with around 50 government and non government organizations. Some new digital initiatives by AMP are: first one is indiazakat.com. It is India's first online zakat crowdfunding platform, was launched in April 2020 to liberate Indian Muslims from poverty and to set the individual on the path of self-sustenance. Second comes in this category is the India Mentors, or TIM. It is an online mentoring platform that is free and open to all. It envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. And third one is empowerjobs.com. It is an online portal started in October 2020, which endeavors to connect the right talent to the right opportunity. Talking about the reach of AMP, it is also present in the Middle East with chapters in Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and UAE. And active volunteers are present in Singapore, Malaysia, South Africa, Oman, Bahrain, UK, US, and Canada. Lastly, I would like to emphasize that more than anything else, it is the rope of Islam that the members of AMP hold on to while treating the strenuous path of empowerment of the Indian Muslim community in particular and the society and the country as a whole in general that has been responsible for the phenomenal growth that AMP has achieved in just over a decade. Now, I would request Mr. Ramizuddin sir, kindly introduce your college to our speakers.
Ramesh sir, Yes, ma'am. can you introduce your college to our speaker and our Yes. Hello, Rahil sir. Uh, very good evening to all the participants. Thank you for organizing this wonderful training session for our students from Anjuman College of Engineering and Technology. I would just like to brief about our organization. Our trust, Anjuman Ham Islam, is having widespread reputation in the field of education in Vidarbha and is currently running 20 educational institutions. On popular demand, it started an engineering college with the name Anjuman College of Engineering and Technology in Nagpur, which is centrally located in the year 1999-2000. The group is also famous for its Polytechnic Institute. Anjuman has the commitment to generate the top leaders for the corporate world. We are under the Anjuman group of institutions serving the society for more than 130 years and making available our talent to the real-time world. We are offering an engineering course in various disciplines like mechanical engineering, electronics and telecommunication engineering, then electronics and power, that is electrical engineering, computer science and engineering, and civil engineering. So these are the 5 branches that we are having in our college. So by this, I just would like to end the briefing about my college, and I request our speaker for today, Professor Rahil Khan, to please move ahead with the session. Thank you. Before heading to Mr. Rahil, I would like to introduce him. A brief introduction to Mr. Rahil sir, about Mr. Rahil sir, to all our students and attendees present. Mr. Rahil Khan sir is a postgraduate in pharmacology, having over 13 years of experience in leading national and international universities as an academician. He gained additional experience through working in Indian as well as international multinationals at different positions such as marketing executive, business development manager, etc. Also, he has some very uh, pro, pro, prominent awards to his credit. He has won Most Promising TPO by GTT 2020, Dynamic Teacher by IPES 2020, and Best Trainer SVPSL 2015. And also, Rahil sir has more than 10 publications in national and international journals, and he is also a certified master trainer EKA Academy. So, Rahul sir, over to you. Kindly start your session and guide our students. Thank you very much to Asha ma'am and Ramesh sir as well for providing me this opportunity. And I am always fortunate and always there to help the community, help the upcoming talents in our country to excel in their respective lives. So let's start today's session. As we all know that why we are over here today, because you have the college has been promised to have the sessions from AMP. और मैं थोड़ा हिंदी में भी जाऊंगा, इंग्लिश में भी जाऊंगा, जो कंटेंट होगा वो इंग्लिश में होगा, मगर हम लोग बात बहुत सिंपल तरीके से करेंगे. बिकॉज आई नो सी आप लोगों को, कई लोगों को ये आप लोगों ने सुना होगा कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, हम लोग कई मरतबा ये बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, और कई लोगों को ये लगता है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि somebody has to be very fluent in English, okay, which is a very wrong notion in itself. सबसे पहली चीज, किसी एक लैंग्वेज में कम्युनिकेशन अच्छा होना मतलब ये है कि आप उस लैंग्वेज को जानते हो, you know about that language. While communication itself is a kind of skill, okay, जो आपको, आप किस तरह से अपने मैसेज को दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हो और आप किस बखूबी या खूबसूरत तरीके से या ब्यूटीफुली या अच्छे अंदाज में आप लोगों तक अपने बात को पहुंचाते हो, दैट इज द स्किल विच नोन एज कम्युनिकेशन. टुडे वी आर हियर टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल इटसेल्फ. तो इसीलिए मैं हिंदी में भी जाऊंगा, इंग्लिश में भी जाऊंगा. आई गेस
that language will be more suitable for you people. If it's suitable, I want you people to reply in the chat box with yes or no. Please go ahead. All the youngsters, upcoming engineers, go ahead. ठीक है, तो मतलब आपको मेरी बात समझ में आ रही है. बिकॉज वी आर इन अ वेबिनार मोड, तो हम लोग चैट बॉक्स को हमारा कम्युनिकेशन का मोड समझ के एड्रेस करेंगे. और यहाँ पे बहुत सारी चीजें होगी जब हम बात करेंगे. पावर पॉइंट मैं स्टार्ट करूंगा तो माय कलीग्स आर हियर. मिस आयशा, शी इज गोइंग टू रिप्लाई. वो मुझे बताएंगी कि आप लोग क्या रिप्लाई दे रहे हो. सो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम. एंड हियर वी आर. सो वी वर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन. हम लोग बात कर रहे थे कम्युनिकेशन की. अब बहुत सारे लोग आज होंगे जो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए स्टडी कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन सीखने के लिए कि किस तरह से अपनी कम्युनिकेशन को ब्रश अप किया जाए. ओके, बहुत सारे लोग बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान दे रहे होंगे. देयर आर पीपल हु एक्चुअली गो फॉर वर्कशॉप्स. बहुत सारे लोग वर्कशॉप अटेंड करने जाते हैं, बहुत सारे लोग कोर्स लेते हैं और लाखों रुपए खर्च करते हैं. यू पीपल शुड बी वेरी फॉर्चुनेट कि आपके कॉलेज ने आपके लिए वर्कशॉप जो है 3-4 दिन का वर्कशॉप लेकर आए हैं उन्होंने. उसमें सारी चीजें दे आर कवरिंग. ओके, सो स्टूडेंट्स के लिए बड़ा फॉर्चुनेट मौका है ये. दूसरी चीज कि हम कम्युनिकेशन के लिए बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं सिर्फ बोलने की. ओके, कि किस तरह से बोला जाए. बट देयर आर अदर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल विच इज बी नोन एज राइटिंग कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन दो तरह से होती है. वन इज वर्बल कम्युनिकेशन, अनदर वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, अब नॉन वर्बल में राइटिंग भी आता है, फाइन. और उसके अलावा जो है तो बॉडी लैंग्वेज दूसरी चीजें भी आती है. वो आप लोग सब सीखोगे धीरे धीरे जैसे दूसरे वर्कशॉप्स आएंगे उसमें. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द राइटिंग कम्युनिकेशन. ओके, कि राइटिंग किस तरह से की जाए. बिकॉज आज के दौर में मुझे ये लगता है इस चीज को जानना बहुत ज्यादा इसलिए भी जरूरी हो गया है क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो है वो बहुत ही स्कैटर्ड वे में कम्युनिकेट करते हैं राइटिंग में भी. क्योंकि हम लोग बहुत सारे शॉर्ट टर्म्स यूज करते हैं. बहुत सारी जो है तो हम ऐसी चीजें यूज करते हैं जिसमें आप जो मीडिया में आपका मेनली कम्युनिकेशन का वो है व्हाट्सएप, वो है फेसबुक, वो है इंस्टाग्राम. ओके, बट द कम्युनिकेशन वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स द original communication in terms of writing, that is letter writing. This is about me, I don't have to exaggerate that. Now let's come back to the topic, that is how to write an awesome letter. Okay, writing और letter क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. ओके, राइटिंग क्या होता है या लेटर राइटिंग क्या होता है, हम इसको सबसे पहले समझेंगे. A written or printed communication directed to a person or organization. देखिए, ये जो लेटर होता है, लेटर जब भी लिखा जाता है तो या तो रिटन होगा या प्रिंटेड होगा. प्रिंटेड आज भी होता है, प्रिंटेड आज से पहले भी होता था. पहले लोग टाइपराइटर पे प्रिंट करते थे. ओके, आज जो चीजें प्रिंट हो रही है वो कंप्यूटर के जरिए प्रिंटर पे प्रिंट हो रही है. सो यही डिफरेंस बस है. बाकी राइटिंग होती थी या तो आप लिख रहे हो पेन और पेपर की मदद से, या तो आप उसको टाइप कर रहे हो. बट वट एवर फॉर्म इट इज, आप जो है तो उसको कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो लेटर या तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जाएगा या तो वो ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा. और यही होता है लेटर का डेफिनेशन. अब आजकल जो लेटर भेजे जाते हैं उसका मोड होता है हाउ टू सेंड अ लेटर. ओके, दीज आर दी मोड्स ऑफ सेंडिंग लेटर्स. अब आप या तो किसी को कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू ईमेल, विच इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग समवन इन टुडेज टाइम. जितने भी फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो ज्यादातर ईमेल के थ्रू भेजे जाते हैं. इलेक्ट्रॉनिकली होता है. उसके अलावा फैक्स होता है. कई लोग जो है तो लेटर टाइप कर लेते हैं या उसको लिख लेते हैं, उसको फैक्स की मदद से जो है तो भेजते हैं. उसके अलावा हैंड डिलीवर्ड ट्रांसमिशन होते हैं, जिस तरह से जो है तो हैंड टू हैंड डिलीवर किए जाते हैं, या रेगुलर मेल ट्रांसमिशन होते हैं. रेगुलर मेल ट्रांसमिशन मतलब आपने पोस्ट कर दिया उसको, ओके, थ्रू दी पोस्टल सर्विसेज. सो इन मोड्स के थ्रू लेटर को भेजा जाता है. और क्योंकि ये चीज आजकल जो है ना काफी लुप्त होती जा रही है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. नेक्स्ट इज राइटिंग, लेटर राइटिंग एटिकेट्स. अभी एटिकेट का मतलब क्या होता है? एटिकेट का मतलब होता है तरीका, ये होता है तहजीब. एटिकेट होते हैं कुछ एटिकेट्स होते हैं इज गुड मैनर्स और अप्रोप्रिएट और एक्सेप्टेड सोशल प्रैक्टिसेस दैट रिफ्लेक्ट एंड प्रमोट सिविलिटी. मतलब इसका ये होता है कि हम इस तरह के तरीके अपनाएं
कि जिस तरह से लोगों को, जो बड़ा जो सोसाइटी है उसमें हमारी चीजें एक्सेप्ट हो जाए, उसको कहते हैं एटिकेट। जैसे कि खाने के एटिकेट होते हैं, द वे वी ईट इन अवर होम वी एक्चुअली डू नॉट प्रैक्टिस इट इन पब्लिक। आप अगर कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो या किसी शादी में जा रहे हो, तो वहां पे आप जो एटिकेट आपके दिखेंगे पब्लिकली, तो ये होते हैं एटिकेट। अब आपके खाने की पीने के एटिकेट भी हो सकते हैं, आपके उठने बैठने के भी एटिकेट हो सकते हैं, इसी तरह से राइटिंग के भी एटिकेट्स होते हैं। फाइन, सो ये चीज को हमने समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज व्हेन शुड यू राइट अ लेटर। द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको लेटर सबसे पहले क्यों लिखना चाहिए? नंबर वन इज, अगर आप किसी को थैंक कहना चाहते हो, इफ यू वांट टू गिव योर ग्रेटिट्यूड टू समवन, कि आप किसी ने आपके ऊपर में कोई मदद की है और आप उसका थैंक्स जो है तो उनको रिटर्न करना चाहते हो, तो लेटर लिखते हैं लोग। या आपको कोई असिस्टेंस की जरूरत है या आपको कोई हेल्प चाहिए, ओके, तो उस वक्त जो है तो लेटर लिखना होता है। या तो आप किसी लेटर को रिस्पॉन्ड कर रहे हो, मतलब कि आपको ऑलरेडी एक लेटर आया है और आप उसका रिप्लाई भेज रहे हो, देन इट इज ऑल्सो देयर इज अ नीड अराइजेस फॉर राइटिंग अ लेटर। एंड एट दिस पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, हमको लेट नहीं करना चाहिए। ओके, जब आपको लगता है कि आपने एक लेटर रिसीव कर लिया है, सो इमीडिएटली यू हैव टू राइट बैक टू द पर्सन। देन टू क्रिएट लीगल डॉक्यूमेंट। आजकल बहुत सारे आप समझते होंगे ये चीजों को, बिकॉज बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में और बहुत सारी जगहों पे हमको लेटर लिखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे टू क्रिएट लीगल डॉक्यूमेंट्स दैट रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट क्लेम्स, उस वजह से भी लेटर लिखने की जरूरत होती है। उसके अलावा टू शो दैट यू आर अ कर्टियस, प्रोफेशनल, डिटेल ओरिएंटेड पर्सन हु इज अवेयर ऑफ एटिकेट। ओके, कि आपको कोई एक कम्युनिकेशन आया है और आपको वो कम्युनिकेशन वापस भेजना है, तो इस वजह से भी जो है तो लोग राइटिंग करते हैं और उनको लिखना चाहिए, क्योंकि ये एक गुड पर्सन की मतलब सिम्टम है कि एक जो प्रोफेशनल होता है, अगर उसको कोई बात अपनी बोलनी है तो इट शुड बी रिटन बाय इट शुड बी कम्युनिकेटेड बाय इन राइटिंग। सो हियर दिस इज द राइटिंग एज वेल। देन व्हाई लेटर राइटिंग मैटर्स। अब ये लेटर राइटिंग इतना मैटर क्यों करता है हर एक की लाइफ में? क्योंकि लेटर लिखना तो है, उसके मैनरिज्म है, एटिकेट्स है, हम इतनी चीजों पे ध्यान क्यों दें? क्योंकि आजकल तो ये आप लोग सभी जानते होंगे, हाउ मेनी पीपल अमंग्स यू एक्चुअली कम्युनिकेट इन राइटिंग, और आपका सबसे बड़ा मोड क्या है राइटिंग कम्युनिकेशन का? टाइप इन द चैट बॉक्स, लेट्स हैव दिस थिंग फर्स्ट, कि आप लोग जो रिटन कम्युनिकेशन करते हो उसका सबसे बड़ा मोड क्या है? कौन से जरिए से आप राइटिंग करके भेजते हो लोगों को? ज्यादातर कौन से ऐसे चीजें हैं जिसमें आप कम्युनिकेट करते हो राइटिंग में? अच्छा मैडम, क्या आंसर्स आ रहे हैं ज्यादा से ज्यादा? शॉर्ट मैसेजिंग, व्हाट्सएप, ईमेल, texting, online, through messages, social media. So basically they all want to say that through online mode. Online mode, very good. See, as I have mentioned you people, कि चाहे आप ऑनलाइन मोड से भेजो या ऑफलाइन मोड से भेजो, लेटर लेटर है, ओके, और वो जो है उसका कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर होगा, उसका कोई ना कोई एक टाइप होगा। अब ये जो शॉर्ट मैसेजेस हम लोग जो भेज रहे हैं, ओके, ये या तो आप SMS के थ्रू भेज रहे हो शॉर्ट मैसेजेस, या तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हो, या आप जो है तो ईमेल के थ्रू भेज रहे हो, या किसी और FB वगैरह पे मैसेज आप भेज रहे हो मैसेंजर पे। सो इन सब का भी ताल्लुक यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज दोज थिंग्स। हम लोग हमारे जो मैसेजेस हैं वो बहुत बार बिना सोचे समझे भेज देते हैं, हम लोग सोचते नहीं है कि क्या होगा कैसे होगा। बट ये इतना मैटर क्यों करता है लिखना, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप जो कोई चीज बोलते हो, when you are talking to someone, हो सकता है कि आपके वर्ड कोई सुनेगा, भूल जाएगा वो या याद भी रखेगा, लेकिन आप बोलोगे यार हो गई बात, हो गई, छोड़ दो। बट when you write something, it becomes a permanent record. Okay, this is why whenever you are writing, whether you are writing in your FB account, whether you are writing through a message, short SMS, whether you are writing on WhatsApp, whether you are writing on Insta, whether you are writing on any medium, you should be very cautious, because it is going to become a permanent record. और आजकल बहुत इजी वे है परमानेंट रिकॉर्ड रखने का, आप भले ही उसको डिलीट करो मगर लोग के पास वो पहुंच जाता है, लोग उसके स्क्रीनशॉट भी खींच लेते हैं, so that becomes a permanent record. Okay, and what you know and think or feel, जो भी आप फील करते हो, जो भी आप सोचते हो, आप अगर उसको लिखते हो, ओके,
सही वे में, तो उसको सही वे में होना चाहिए ताकि आपकी जो फीलिंग्स है, आपका जो बोलना आप जो चाह रहे हो, जो मैसेज आप लोगों को पहुंचाना चाह रहे हो, वो सही पहुंचे. ओके, let us have come back to haunt many people. Why it is so? Because there are so many examples. कई लोगों ने जो है, तो आज तो हमारे पास में ये सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है. इससे पहले लोग रिटन कम्युनिकेशन करते थे, हाथ से लेटर लिखते थे, और उनके लिखे हुए लेटर्स कई लोग उठा के रखते थे, और उसके बाद में जो है तो वो लेटर वापस लोगों को बताते थे. कई अच्छी बातें सामने आती थी, कई जो है तो मतलब कुछ ऐसी पर्सनल चीजें वो सामने आ जाती थी. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दीज थिंग्स व्हाइल राइटिंग समथिंग. देन लेटर रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द राइटर. और ये सबसे बड़ा एक मेन पॉइंट है कि जब आप कभी भी कोई लेटर लिखते हो तो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, ओके, प्लस आपका कैरेक्टर क्या है, और आप किस तरह से मतलब सामने वाले से मुखातिब होना चाह रहे हो, किस तरह से सामने वाले से आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, ये सारी की सारी चीजें आपके लेटर में आ जाती है. So we have to be very cautious about these things. Okay. Then before writing a letter, before writing a letter, there are few points which you should understand and which you should remember always. Number one, read the letter which is communicated to you. मतलब आपके पास अगर कोई लेटर आया है उसको केयरफुली पढ़िए पहले, ओके, और उसको समझिए कि जो लेटर आपके पास आया है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है और आपको क्या बताना चाह रहा है. फाइन. सो उस तरह से आप क्या करोगे कि अपने जो लेटर आपको रिस्पॉन्ड करना है उसको बहुत अच्छे से आप रिप्लाई भेज सकते हो. सो सबसे पहले है कि आपके पास जो लेटर आया है, अगर आपको वो लेटर रिप्लाई करना है तो आपको बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ लेना है, उसको समझ लेना है कि जो लेटर में जो बात लिखी है उसका मैसेज क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं सामने वाले, और उसके बाद में हम उसको रिप्लाई करेंगे. दूसरी चीज, लेटर लिखने की क्या वजह हो सकती है कि या तो आपने कोई अनाउंसमेंट देखा है या कोई आर्टिकल पढ़ा है जिसने आपको मोटिवेट किया है लेटर लिखने के लिए. अब ये हो सकता है कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी हो, सपोज इन सम ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉब, जिसके बारे में आगे कवर करेंगे, या कोई और दूसरी चीज ऐसी हो जिसके बारे में आपको मतलब लिखना हो और आपने उसके हिसाब से लेटर लिखना सोचा है. जैसे कि एग्जामिनिंग द टोन, आपको क्या एग्जामिन करना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ द लेटर, मतलब ये होता है कि लैंग्वेज क्या है लेटर की, उसको एग्जामिन करिए. अनाउंसमेंट और अदर प्रिंटेड मटेरियल, वो अनाउंसमेंट आपको क्या कहना चाह रहा है उसको समझिए, ओके, और उसके बाद में जो है तो उससे हमको कंक्लूड करना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या होने वाली है. जो ये लेटर आप लिखने वाले हो, ये लेटर पढ़ने वाले कौन लोग होंगे, ओके, क्या वो कोई गवर्नमेंट एजेंसी के लोग होंगे, क्या वो हमारे मम्मी पापा होंगे, क्या वो आपका फ्रेंड होगा, क्या वो आपका कोई कुलीग होगा, क्या आपका कोई सुपेरियर होगा, क्या आपके टीचर होंगे, क्या आपके जो है तो आप किसी एचआर मैनेजर को अप्लाई कर रहे हो, वो लेटर है कवरिंग लेटर जिसको हम कहते हैं. सो ये जो सारी चीजें हैं इसको हमको समझना बहुत जरूरी है. और यहीं पर बात आती है जो होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल टाइप ऑफ लेटर्स. लेटर्स के दो मेजर टाइप है. Those are, number one is formal letter, another one is informal letter. Okay, so हमको जब ये करना है तो हमको यहाँ पे सोच लेना चाहिए कि हमारा लेटर जो है वो किस टाइप का होने वाला है. अभी देखिए, किसी भी टाइप का लेटर हो उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो 3 पॉइंट मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, वो हमको ध्यान में रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है. नंबर वन इज द मैकेनिक्स ऑफ द लेटर आर प्रोनाउन. प्रोनाउन होता है ना, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, कितने लोग बता सकते हैं चैट बॉक्स में. चलिए छोड़िए, क्योंकि ये ग्रामेटिकल पार्ट आ जाता है, बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस कि हमको लेटर लिखते हुए जो भी लैंग्वेज में हम लेटर लिख रहे हैं, ओके, उसका ग्रामर आना बहुत जरूरी है. एंड स्पेसिफिकली विथ वी पीपल, बिकॉज वी पीपल आर कंसिडर्ड एज द एजुकेटेड पीपल इन द सोसाइटी. ओके, नाउ जैसे कि लेटर में लिखते हैं तो सबसे पहले जो प्रोनाउंस होते हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जैसे कि आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू, एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, इनको ज्यादा से ज्यादा हमको इंपॉर्टेंस देना चाहिए. और लेटर में कभी भी थर्ड पर्सन करके अपने आप को बताना नहीं चाहिए. हमको हमेशा आई से ही अपने आप को बताना चाहिए. ओके, एंड हमारे दूसरे जो लोग हैं उनको यू करके बताना चाहिए. ओके, सो इस तरह से हमको उसका सबसे पहले प्रोनाउंस पे फोकस करना चाहिए. देन फोकस एंड स्पेसिफिसिटी. प्रोनाउन के बाद में जो दूसरी चीज आती है दैट इज बी फोकस्ड. हाउएवर अवॉइड चॉपी सेंटेंसेस. चॉपी सेंटेंसेस मतलब घूमे हुए या बहुत ही ज्यादा टेढ़े मेढ़े सेंटेंस हमको नहीं लिखने चाहिए. जो सेंटेंसेस होंगे वो बहुत ही फोकस्ड होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए.
उसके अलावा जो डोंट बी सो कंसाइज दैट योर टोन इज ब्लंट, बहुत ज्यादा कंसाइज भी नहीं होना चाहिए, ओके, कि हम बहुत ज्यादा ब्लंट लगे, बहुत ज्यादा रूड लगे लेटर के अंदर में। यूज टर्मिनोलॉजी एंड कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्री और फील्ड, अगर हमको जरूरत है तभी जार्गॉन्स यूज करना चाहिए। जार्गॉन्स होते हैं, कोई भी एक इंडस्ट्री होती है उसके बहुत स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, अगर आपको उसकी जरूरत है तो वो लेटर में मेंशन करो, अदरवाइज ये जार्गॉन्स को ज्यादा मेंशन नहीं करना चाहिए। अवॉइड वैग्यूनेस, वैग्यूनेस कहते हैं कि बी स्पेसिफिक, ज्यादा घुमा हुआ नहीं होना चाहिए आपका लेटर, लेटर टू द पॉइंट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, ओके। देन दिस इज समथिंग बिफोर राइटिंग अ लेटर यू शुड नो। नंबर थर्ड इज एक्टिव वर्सेस पैसिव। ये एक्टिव वर्सेस पैसिव वॉइस होती है, और आपको वॉइस पता है, एक्टिव वॉइस होती है, पैसिव वॉइस होती है। जब आप लेटर कोई लिख रहे हो तो इसको यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। पैसिव सेंटेंस, इट वाज डिस्कवर्ड दैट द सैलरी टोटल वेयर इनकरेक्ट, दिस इज अ पैसिव सेंटेंस, फाइन। अब ये पैसिव सेंटेंस की जब जरूरत होगी तब इसको डालना चाहिए अपने लेटर में, ओके। अदरवाइज अगर एक्टिव सेंटेंस डालना है तो आपने एक्टिव सेंटेंस ही डालना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हो, द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डिस्कवर्ड दैट द सैलरी टोटल वेयर इनकरेक्ट, ओके। ये रिवाइज्ड एक्टिव कंसेप्ट होता है लिखने का। देन हु डिस्कवर्ड इट, ये प्रॉब्लम यहाँ पर एक आता है, ओके, पैसिव सेंटेंस में, कि किसने ये जाना। अब क्योंकि आप लिख रहे हो, आप बोल नहीं रहे हो, तो आपने अगर लिखा है कोई चीज तो यहाँ पे आपको कोई पूछेगा नहीं, पूछने के लिए मतलब कोई है ही नहीं, तो आपको इसीलिए लेटर में क्लियर करना चाहिए कि ये जो अकाउंट्स में जो सैलरी के टोटल में इनकरेक्शन आया है ये किसने फाइंड आउट किया है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डिस्कवर्ड दैट द सैलरी टोटल वेयर इनकरेक्ट, दिस इज द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द सेंटेंसेस इन द लेटर, ओके, जिसको हम कहते हैं रिवाइज्ड एक्टिव सेंटेंसेस। पैसिव सेंटेंसेस को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि पैसिव सेंटेंसेस अगर होंगे तो उसमें किसने किया है या क्या काम हुआ है वो बता नहीं पाओगे आप, राइट। देन एज आई हैव मेंशन्ड यू दैट देयर आर two categories of letter writing. One is a formal type of letter writing and another one is the informal type of letter writing. Now tell me, I just wanted to ask the students, actually ये पहले मैं पूछना चाहता था, but let's ask them now. कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक लेटर लिखा है पेपर और पेन की मदद से, और वो लेटर किसको लिखा है, पेरेंट्स को लिखा है या फ्रेंड को लिखा है या टीचर को लिखा है या किसी और को लिखा है, आपके कोई रिलेटिव को लिखा है, कोई कंपनी में इंटर्नशिप के लिए किसी ने कोई लेटर लिखा है आज तक पेपर पेन पे या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, और किसको लिखा? Principal or teacher, 2 students have responded. Okay. Sir to principal and to teacher. Good. अच्छा, ये अब अगर हम बात करें कि प्रिंसिपल सर को लेटर लिखा गया है, कौन से टाइप का लेटर होगा ये? ओके, टू आरटीएम समवन सेड यस सर, टू प्रिंसिपल फॉर्मल लेटर, गुड। या तो आपने कोई एप्लीकेशन लिखी होगी या तो आपने अपोलोजाइज किया होगा, अगर टीचर या प्रिंसिपल को लेटर लिखा है तो एप्लीकेशन, गुड। सो यहाँ पे आप लोग ये थोड़ा समझ रहे हो और इसको ध्यान में रखना चाहिए हमको कि देखिए कुछ लेटर होते हैं जो फॉर्मल होते हैं, कुछ होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। अब फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स को बिजनेस लेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। इनका बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है, ओके, और इसको हम बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ एसे राइटिंग कहते हैं। एक फॉर्मेट होता है जिसको हम एलिमेंट्स ऑफ एसे राइटिंग कहते हैं, और वो फॉर्मेट के ऊपर में हमको थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, उसमें ऊपर नीचे चीजें हो सकती है मगर कुछ चीजें जो है तो स्टैंडर्ड होती है। आई विल शो इट टू यू, फाइन। उनको हमको ध्यान रखना चाहिए। और जो पर्सनल और इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, दोज आर मीन्ड, अभी ये जो बिजनेस लेटर्स होते हैं या फॉर्मल लेटर्स होते हैं, ये किसको लिखे जाते हैं? तो यूजुअली जैसे आप लोग जानते ही हो, ये या तो किसी गवर्नमेंट एजेंसी को लिखे जाएंगे, या तो कोई जॉब एप्लीकेशन के लिए लिखा जाएगा, प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन आप दे रहे हो उसके लिए लिखा जाएगा, या कोई बैंक में आप आपका कोई काम है उसके लिए लिखा जाएगा। दीज आर फॉर्मल लेटर्स।
और पर्सनल लेटर्स क्या होते हैं? दीज आर एड्रेस टू समवन whom you are familiar to. Familiar to मतलब आप जिनको जानते हो. Okay, it could be whether you are a friend, it could be your mother, it could be your father, it could be anyone. जो आप जिनको जानते हो, ये लेटर उनको जाता है, which is known as the informal type of letter. So पहले हम पर्सनल लेटर देख लेंगे, which is the informal type of letter. अब ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ लेटर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 इज अपोलोजाइज. अब अपोलॉजीज जो होती है ये जनरली इनफॉर्मल में आती है. इसका हो सकता है जो आप इसको फॉर्मली भी लिख रहे हो, मगर जो अपोलॉजीज लेटर होते हैं वो यूजुअली जो है तो इनफॉर्मल टाइप ऑफ लेटर होते हैं. ओके, पर्सनल लेटर्स होते हैं. अब अपोलॉजी आप किस लिए करोगे? आप पर्सनल बिहाफ पे करोगे ना, आप कोई एप्लीकेशन नहीं दोगे उसके लिए. सो दीज आर अपोलॉजीज या अप्रिसिएशन एंड थैंक यू लेटर, या आप किसी को थैंक्स कहना चाह रहे हो या अप्रिशिएट करना चाह रहे हो कोई काम के लिए. देन देयर कुड बी कांग्रेचुलेशंस. ओके, कांग्रेचुलेट करना चाह रहे हो, आप किसी को मुबारकबाद देना चाह रहे हो, शाबाशी देना चाह रहे हो, उस लिए होता है. देन पर्सनल कंप्लेंट्स हो सकती है. देखो अपोलॉजीज और कंप्लेंट में क्या फर्क है कि आप अपोलोजाइज कर रहे हो अपनी मिस्टेक के लिए, और पर्सनल कंप्लेंट एक कोई हो सकती है कि किसी ने आपके घर का शीशा तोड़ दिया. ओके, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे सोसाइटी में, उन्होंने शीशा तोड़ दिया, एंड यू आर फॉर्मली इनफॉर्मली यू आर राइटिंग कि आप लिख रहे हो उनके पेरेंट्स को कि भाई ये बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, इन्होंने शीशा तोड़ दिया, इफ यू कैन रिकवर द थिंग्स. तो ये जो चीज होती है ये पर्सनल कंप्लेंट्स भी होती है. देन देयर आर इन्विटेशंस. ओके, इन्विटेशन के लिए जो है तो लेटर लिखे जाते हैं. देन देयर कुड बी ऑफरिंग कंडोलेंसेस. आप अगर किसी को शोक व्यक्त कर रहे हो किसी के किसी की मौत पे, या आप किसी को सिंपैथी दे रहे हो, या गेट वेल सून आप किसी को कहना चाह रहे हो. सो इन सब सिचुएशंस में लेटर राइटिंग इज डन, एंड दोज आर पर्सनल लेटर्स. पर्सनल लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो हर इंसान के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, बट उसका भी एक तरीका है लिखने का, जिसको हम बताते हैं यूजुअली. सबसे पहले तो जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो लेटर आप किसको लिख रहे हो, क्योंकि पर्सनल हो या इनफॉर्मल लेटर भी हो तब भी वो लेटर को पढ़ने वाला व्यक्ति अलग अलग हो सकता है. एज आई हैव टोल्ड यू कि जो लेटर्स होते हैं इट कैन हंट यू आफ्टरवर्ड्स एज वेल, क्योंकि आपने कोई चीज रिटर्न में दी है, चाहे वो आपने इलेक्ट्रॉनिकली लिखी हो या पेपर पेन पे लिखी हो, इट कैन हंट यू. सो इस चीज को हमको हमेशा ख्याल रखना चाहिए. अब आपने अगर पर्सनल लेटर भी लिखना है तो ये चीज को पहले समझिए हम. उसके बाद में आप जब पर्सनल लेटर लिख रहे हो, चाहे वो टाइप्ड हो या हैंड रिटन हो, मे इंक्लूड पर्सनल टचेस. ओके, दैट रिफ्लेक्ट योर स्टाइल और पर्सनालिटी. अब इसमें आपका एक पर्सनल टच आ सकता है. जैसे बहुत सारे लोग अपने एक तरीका होता है उनका लेटर लिखने का. पर्सनल लेटर्स जब वो लिखते हैं तो कुछ एक स्पेसिफिक टाइप की स्टेशनरी होती है. ओके, वो उनकी स्टेशनरी पे लिखते हैं. कई लोग A4 साइज पे अब लिखेंगे, अब क्योंकि उतना लोग सोचते नहीं है, लेकिन जब पहले लोग लिखते थे, जब उसको एनवेलप में डाल के अपने किसी घर पे या कहीं और भेजते थे, तो एक पर्टिकुलर टाइप का एक लेटर पेपर होता था. इट कुड बी पिंक कलर का या बेज कलर का पेपर होगा, टेक्सटेड वाला पेपर होगा, कुछ टाइप का पेपर होगा. वो सबसे पहले होता था, स्पेशल स्टेशनरी होती थी. उसकी डेट उसमें सबसे पहले आती है फोर फ्रंट पे. ओके, जैसे यहाँ पे लिखी हुई है December 2007. ओके, देन सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग होता है, डियर ABC, मैंने यहाँ पे लिखा है. I just wanted to take a moment to write to you to express my thanks for the extra tutoring help you gave me this fall as I struggled in my math. Okay, अब ये कोई जो है तो लिख रहा है कि उसने थैंक्स वाला लेटर लिखा है, कि जो उसके टीचर को लिखा है, या हो सकता है किसी फ्रेंड को लिखा हो. ओके, कि मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ. उसके बाद में एक ये लिखने के बाद में देन देयर इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होता है जिसमें आप एक पैराग्राफ में लिखते हो कि यू स्टैंड हेड एंड शुडर्स अबाउ अदर्स इन द फील्ड. मतलब कि आप जो है तो दूसरों में जो कहने वाले हैं उनसे ज्यादा करने वालों के अंदर में आते हो. एंड ऑफ मैथ, एंड आई सो अप्रिशिएट द इंफॉर्मेशन, टाइम एंड पेशेंस यू प्रोवाइडेड टू मी. ये सब जो है तो सामने वाला लिख रहा है अपने एक नजरिए के बारे में. ओके, इसमें एक पर्सनल टच है. लास्ट में आपका सिग्नेचर होता है जिसमें आप बेस्ट विशेस देते हो और उसके अंदर में आपका नाम लिखते हो. सो दीज आर पर्सनल टचेस इन अ पर्सनल लेटर. अब ये
लेटर कब लिखा जाता है पर्सनल लेटर, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, टू थैंक समवन, ग्रेटिट्यूड फॉर गिफ्ट के लिए या ग्रुप एफर्ट के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, बहुत सारी चीजें होती है, उन सब चीजों के लिए जो है तो पर्सनल लेटर्स लिखे जाते हैं। राइट, अब हम बात करेंगे कि गाइडलाइंस जो होती है पर्सनल लेटर लिखने की। जैसे मैंने आपको बताया कि गाइडलाइन एज सच तो पर्सनल लेटर की कोई होती नहीं है, बिकॉज पर्सनल लेटर अपना खुद का एक पर्सनल टच होता है, बट स्टिल इसमें जो मेन चीजें होती है, दैट स्टेट दैट व्हाट यू अप्रिशिएट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन बाय, आप क्या चीज अप्रिशिएट कर रहे हो और किस बारे में आप बात कर रहे हो वो ब्रीफली बताना चाहिए हमको उसमें। देन डू नॉट ऐड अदर न्यूज और इन्फॉर्मेशन, पर्सनल लेटर भी हम लिख रहे हैं तो उसमें कंसाइज होना चाहिए, हमको एक पॉइंट पे एक ही चीज बतानी चाहिए, दूसरी 4 न्यूज उसके अंदर डालनी नहीं चाहिए। बी ब्रीफ, वार्म एंड सिंसियर। ओके, ब्रीफ होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए लेटर। उसके अलावा हमारा जो लेटर है वो वार्म होना चाहिए, मतलब कि काफी हमारे अंदर जो एंथुजियाज्म हमारे अंदर है वो हमारे पेपर पे आने चाहिए। देन सिंसियर होना चाहिए। ओके, 2 to 3 लाइन्स शुड बी सफाइस। ओके, जो आपका जो ये सब चीजें हैं ये 2 से 3 लाइन में जो है तो आपका आ जाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, थैंक यू फॉर द कैरेक्टर रेफरेंस। ओके, यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, यू प्रोवाइड टू ट्रॉय यूनिवर्सिटी ऑन माई बिहाफ, I truly appreciate your willingness to provide the reference as well as your time and attention to complementing it. Again, thank you and best wishes, Tina, applicant. Okay, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, postcards may be used for short notes, personal notes should be handwritten. Okay, अब ये अलग-अलग टाइप से आप लिख सकते हैं। अब हमारा सबसे मेन टाइप ऑफ राइटिंग आता है एंड दैट इज अवर मेजर पार्ट। Let's get back to the topic now. जो कॉमन टाइप्स ऑफ बिजनेस लेटर होते हैं जिनको हम फॉर्मल लेटर्स भी कहते हैं, इसमें एक्सेप्टेंस लेटर होते हैं जिसमें लीगल कोई काम अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो। जैसे कि आपको कोई एक कंपनी ने ऑफर दिया, उसके लिए आपने एक्सेप्टेंस लेटर दिया कि यस मैंने ये जॉब कबूल की। ओके, उसके अलावा एक्नॉलेजमेंट लेटर होते हैं जिसको हम कहते हैं रिसीप्ट। रिसिप्ट मतलब कि कोई एक आपके पास में इंफॉर्मेशन या कोई चीज आई है, सपोज योर सर्टिफिकेट्स केम एंड यू हैव रिसीव्ड के आई हैव एक्नॉलेज्ड दैट आई हैव रिसीव्ड सो एंड सो डॉक्यूमेंट, ये होता है रिसिप्ट और एक्नॉलेजमेंट लेटर। फाइन, इसके अलावा एडजस्टमेंट लेटर होते हैं, जैसे कि जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई कंप्लेंट करना है आपको या कोई क्लेम करना है। जैसे होता है ना, कोई बैंक में आपने कोई कंप्लेंट करनी है कि मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो एटीएम में हो गया था मगर मुझे उसका एसएमएस आ गया मगर मैं पैसे विड्रॉ नहीं कर पाया। ओके, ये जो होता है एक तरह का कंप्लेंट है। फाइन, या आप क्लेम कर रहे हो। ये एप्लीकेशन लेटर होते हैं, जॉब के लिए होते हैं, इंटरव्यू के लिए होते हैं, अदर काइंड ऑफ थिंग्स के लिए होती है एप्लीकेशन। जैसे आप कॉलेज में लिखते हो, आपको बोनाफाइड लेना है या आपको जो है तो कोई डॉक्यूमेंट कॉलेज से निकालना है या आपको लीव चाहिए या आपको जो है तो कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट चाहिए। सो दीज आर एप्लीकेशन लेटर। देन कंप्लेंट लेटर्स होते हैं, जैसे मैंने बता दिया लीगल डॉक्यूमेंट होता है। कवर लेटर होते हैं जिसको हम कवरिंग लेटर कहते हैं। जनरली ये रिज्यूम्स के साथ, रिज्यूमे इज अ डॉक्यूमेंट वेयरइन यू हैव योर डिटेल्स ऑफ योर करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटीज ऑफ योर कॉलेज लाइफ एंड व्हिच यू सेंड टू दी इंटरव्यूअर। तो उसके साथ में कवरिंग लेटर होता है जिसको हम आगे कवर करेंगे। इंक्वायरी लेटर हो सकते हैं, उसके अलावा ऑर्डर लेटर होते हैं, रेफ्यूजल लेटर्स होते हैं कि रिजेक्ट करता है अगर कोई ऑफर रिजेक्ट करते हैं, या जैसे कोई आप अगर अभी आप शायद रिसर्च वगैरह में नहीं काम कर रहे हो, आप आने वाले टाइम में जो है तो रिसर्च करोगे। सो जर्नल्स होती हैं, साइंटिफिक जर्नल्स, साइंस जर्नल्स होती है, उसमें जब हम कोई लेटर आर्टिकल के लिए कोई भेजते हैं तो उसमें या तो एक्सेप्ट होता है वो आर्टिकल, या एक्सेप्ट होगा तो एक्सेप्टेंस लेटर मिलेगा आपको कि वो जर्नल ने आपका आर्टिकल एक्सेप्ट कर लिया। आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल। उसके अलावा उसको रिजेक्ट भी करते हैं वो लोग, तो वो रिजेक्शन लेटर भी होते हैं। कई बार आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपका एक्सेप्टेंस लेटर आता है कि यस वी हैव एक्सेप्टेड योर रिज्यूम एंड वी विल फॉरवर्ड इट टू योर अदर डिपार्टमेंट। कई बार ये होगा कि वो रिजेक्ट कर देंगे, तो उसके हिसाब से भी लेटर आ सकता है, उसको रेफ्यूजल लेटर कहते हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्स लेटर होता है। रिस्पॉन्स लेटर कहते हैं हम कि कोई एक बात किसी ने कही है, अब आप उसको जवाब दे रहे हो। ओके, रिस्पॉन्स दे रहे हो। और ये जनरली जो होता है ये रिस्पॉन्स लेटर ये इनफॉर्मल भी होता है, लेकिन बहुत सारे टाइम पर ये फॉर्मल होता है आज की डेट में। जैसे आप जब जॉब करने बाहर निकलोगे
and when you will do the job, whether you are going to in industry, in academics, in research, anywhere, वहां पे आपको बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आपको ईमेल के थ्रू देने होंगे, और वो सारे के सारे होंगे फॉर्मल टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज. देन सेल्स लेटर होते हैं कि आप कोई मार्केटिंग कर रहे हो, उसके लिए लेटर भेज रहे हो. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ लेटर्स व्हिच आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. सबसे पहले तो इसमें ये चीज है कि आइडेंटिफाई योर रीडर, कि आपका रीडर कौन है. कि आपका रीडर जो है वो कोई कंपनी का HR मैनेजर है, या आपके प्रिंसिपल है कॉलेज के, या जो है तो वो बैंक का कोई मैनेजर है, या जो है तो वो कोई मतलब और जगह का कोई बंदा है. आप जो लोगों को लेटर लिख रहे हो उनको, ऑडियंस को ध्यान में रखो. सबसे पहले रीडर कौन है. देन एस्टैब्लिश योर ऑब्जेक्टिव. आपका ऑब्जेक्टिव आप समझ लीजिए कि मुझे लिखना क्यों है. क्या आपको जॉब के लिए लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिख रहे हो आप, क्या आपको बोनाफाइड के लिए लिखना है, या आपको जो है तो छुट्टी के लिए लिखना है प्रिंसिपल सर को लेटर, या जो है तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके लिए लेटर लिखना है. तो ये पहले आपको समझ लेना चाहिए. देन डिटरमाइन योर स्कोप. ओके, कि आपका स्कोप क्या है, थोड़ा रिसर्च करिए इंफॉर्मेशन पे. देन ऑर्गेनाइज योर लेटर. ओके, आपका ऑर्गेनाइज कर लीजिए, आप लेटर को उस तरह से लिख लीजिए, ड्राफ्ट करिए आपके लेटर को, क्लोज करिए एंडिंग को बराबर से, रिव्यू करिए एक बार कि आपने जो लिखी है चीजें वो बराबर है या नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है. ये सब करने के बाद में प्रूफ फॉर फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड एडिट फॉर लॉजिक इश्यूज, ये सब चीजों को एडिट करिए. देन यू कैन सेंड द लेटर. जैसे जो जनरल पार्ट्स होते हैं फॉर अ फॉर्मल और बिजनेस लेटर, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं. आई वांट यू कि अगर आप लोग इसको समझ रहे हो अच्छे से तो इसको स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, ताकि आपको आगे अगर कभी भी जब ये चीजें आएगी तो फॉर्मेटिंग यू कैन यूज इट. सबसे पहले होता है हेडिंग. हेडिंग में जो आता है सेंडर्स, रिटर्न एड्रेस एंड डेट होता है. ओके, हम इसका एक फॉर्मेट भी देखेंगे. ये क्या होता है, जो लेटर भेज रहा है, सपोज अगर मैं भेज रहा हूँ किसी को लेटर फॉर्मल वे में, तो सबसे पहले मेरा एड्रेस आएगा, वो भी आएगा अगर हम इस तरह से फॉर्मेट देख रहे हैं तो लेफ्ट अपर हैंड साइड पर आएगा. सबसे पहले मेरा एड्रेस आएगा, उसके सामने में इधर डेट लिखी होगी, मेरा नाम आएगा, मेरा डेजिग्नेशन होगा, मेरा जो है तो एड्रेस होगा. ओके, रिटर्न एड्रेस जिसको हम कहते हैं, मतलब ये मेरा होगा जो मैं लिख रहा हूँ. ओके, देन इनसाइड एड्रेस जो है तो रेसिपिएंट का होता है, उसके बाद में एक रेसिपिएंट का एड्रेस आता है. देन सैल्यूटेशंस होते हैं, रिस्पेक्टेड सर और डियर सर करके. ओके, या डियर मिस्टर और डियर मिस, इस तरह से जो है तो सैल्यूटेशन होते हैं. देन बॉडी होता है जिसमें आप पैराग्राफ लिखते हो. ओके, आपका जो काम है वो लिख रहे हो आप. उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है कि आप कोई कॉम्प्लीमेंशन देकर जो है तो क्लोजिंग कर रहे हो लेटर का. देन सिग्नेचर लाइन होती है, विद और विदाउट टाइटल होता है. अब इसमें जो है तो आप मिस्टर, मिस, प्रोफेसर, डॉक्टर जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो. एनक्लोजर ऑप्शनल होता है. देन CC नोटेशन होता है. CC मतलब के कॉपी टू. ओके, हम ये करते हैं कार्बन कॉपी, इसको कहते हैं CC को फुल फॉर्म में. CC आप कर सकते हो कि ये लेटर मतलब एक सामने वाले को भेजा गया और एक दूसरे बंदे को भेजा गया है, जो कि आप ईमेल में यूजुअली करते हो. और जब आप ये ईमेल वाली राइटिंग आप जब यूजुअली करोगे तो इसमें अगर आपके मैनेजर को आप लेटर भेज रहे हो, या आप अगर सपोज कोई क्लाइंट को लेटर भेज रहे हो, तो आपने अपने सुपरवाइजर या आपका जो मैनेजर है, आपकी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, उनको भी हम CC में रखते हैं. ओके, देन सेंडर और टाइपिस्ट इनिशियल होते हैं, वो आपका ऑप्शनल होता है, लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो. दिस इज अ सैंपल. ओके, वेयरिंग यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जो यहाँ पे तैयार करके आपको बताया जा रहा है. आप इसको ले सकते हो अपने हिसाब से. लेटर फॉर्मेट है ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे लेटर लिखा है, आपका नाम आएगा जो आप जो भेज रहे हैं, उसके बाद में एड्रेस है, एड्रेस लाइन रहेगी, फोन नंबर है, डेट है जो आपका डेट होगा, उसके बाद में टू व्हाट दिस लेटर रिफर्स. ओके, री होता है मतलब कि ये सब्जेक्ट लाइन होती है. फाइन, कि ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है, ये सब्जेक्ट जो हम कहते हैं लेटर को लिखने का, उसके लिए री लिखा जाता है, जो आप जनरली जो है तो अपने ईमेल में आपके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन दी हुई होती है. तो व्हाट दिस लेटर इज रिफर्स टू. ओके, देन अगर कोई सर्टिफाइड मेल है तो उसको आप वो लिखोगे. देन पर्सनल लिखोगे. फिर उसके बाद में रेसिपिएंट्स का नेम लिखेंगे, कंपनी नेम लिखेंगे, उनका एड्रेस लिखेंगे. अब यहाँ पर कुछ चीजें और आती है. अगर जो रेसिपिएंट है उनका नाम के बाद में उनका डेजिग्नेशन भी आता है, टू मिस्टर और प्रोफेसर और डॉक्टर सो एंड सो, HOD और जनरल मैनेजर ऑफ सो एंड सो कंपनी, एड्रेस है मुंबई, नागपुर, व्हाटएवर, वो लिखेंगे. देन अटेंशन, रेसिपिएंट्स नेम आएगा यहाँ पे. डियर रेसिपिएंट, अब उनका नाम आ जाएगा, डियर सर या डियर मैडम, या इस तरह से लिखा जाता है. देन सब्जेक्ट आएगा. देन उसके बाद में द मेन जो भी बॉडी होगी वो आएगी.
उसके बाद में जो है तो क्लोजिंग आएगी, सिंसियरली आपका सिग्नेचर आएगा, उसके नीचे में आपका नेम रहेगा। तो अगर आप इसको प्रिंट के लिए निकाल रहे हैं तो पहले जो है तो हम क्या करते हैं कि सिंसियरली, उसके बाद में स्पेस छोड़ देते हैं, फिर अपना नाम पूरा लिखते हैं, टाइटल वगैरह जो भी लिखना है वो लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन इनिशियल है, कॉपी टू है, जो भी है वो नीचे आ जाएगा। प्रिंट आउट निकालने के बाद में हम वहां पे साइन करते हैं। ओके, ये होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग का प्रॉपर तरीका। ओके, तो इसको आप चाहे तो अपने स्क्रीनशॉट में लेकर भी रख सकते हैं। पैराग्राफ्स जो होते हैं ये इंटेंडेड होते हैं, हाउ वेयर दीज पार्ट्स ऑफ द लेटर आर सेंटर्ड। अभी देख रहे हैं आप, जैसे ये पैराग्राफ जो है तो सेंटर में अलाइन किया गया है, और यहाँ पे जनरली जो मैंने बताया एग्जांपल आपको, इसमें पैराग्राफ है, कभी पैराग्राफ होता भी है, कभी नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि लेटर का लेंथ कितना है। ओके, उसके बाद में आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड दिस। आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो हम बाद में ले लेंगे। इसमें एक और एक जो पार्ट मैं कवर करना चाहता था, दैट इज कॉल्ड एज द कवरिंग लेटर। अब ये जो एक बिजनेस पार्ट का आपको मैंने सैंपल बताया, इसमें एक मेजर पार्ट है कवरिंग लेटर। ओके, फॉर्मल लेटर्स में अब इसमें बहुत सारे फॉर्मल लेटर्स होते हैं विच वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट। अब इसमें जो मेजर है कवरिंग लेटर, बिकॉज आप लोगों को जॉब के लिए जब अप्लाई करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू मेक अ रिज्यूमे के लिए सम अदर ट्रेनर विल टेक द सेशन, ओके, how to create a resume, and after that when you have created a resume you also have to put it a covering letter. अगर आप पोस्ट से भेज रहे हो तो कवरिंग लेटर टाइप करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, ज्यादातर आजकल ईमेल के थ्रू भेजे जाते हैं तो उसमें भी आपको लिखना चाहिए टू मेक श्योर दैट योर रिज्यूम अराइव ऑन द डेस्क ऑफ द करेक्ट पर्सन। आपका जो रिज्यूम है वो सही आदमी के पास जाए, तो आप जो कवरिंग लेटर है अब इसको ईमेल में लिख देते हैं। ओके, आपका जो रिज्यूमे है आपने वो अटैच किया, और जो कवरिंग लेटर है वो आपका ईमेल का बॉडी है, तो इस तरह से उसको लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे जो है तो उसका भी फॉर्मेट यहाँ पे आपके लिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका नाम आएगा, ओके, देन आपका एड्रेस आएगा, उसके बाद में डेट आएगी जो भी टुडेज डेट है वो, देन देयर नेम, देयर टाइटल, देयर ऑर्गेनाइजेशन, देयर एड्रेस, ये आएगा। देन ग्रीटिंग्स आएगा, ओके, डियर मिस्टर स्मिथ जैसे यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद में इंट्रोडक्शन आएगा, इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को, जैसे कि आई वुड लाइक टू अप्लाई टू योर कंपनी और टू योर internship program. My name is so and so. I have done my degree, bachelor's in engineering from Anjuman College of Engineering, Nagpur, in the year 2022 or 23 or 24, whatever, whenever you are going to write the things. उसके बाद में आप वो सारी चीज़ों को अपने इंट्रोड्यूस करने के बाद में फिर नीचे आओगे कि how you actually come to know about the vacancy, वहाँ का बता सकते हो आप। उसके बाद में आपने अभी तक क्या क्या किया है, आप एकेडमिकली कितने स्ट्रांग हो, ये सब बताने के बाद में you can write a line or two that you have I have also appended or attached my resume with this mail or with this covering letter, and you can close it sincerely, and आपका जो है तो नाम वगैरह लिख के आप उसको close कर सकते हो। So this is how a covering letter should be. So here was my this small presentation about writing the letters. I hope the crux of the presentation or the crux of my talk you must have understood. मेरा जो यहाँ पे मकसद था, because see, no one can become perfect whether in written communication or in verbal communication within a hour's time. No one can make you. यहाँ पे आपके लिए जो ये हमने कंसेप्ट दिया है ताकि आपको सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, अवेयरनेस आ जाए कि लेटर लिखने के क्या क्या तरीके हैं, किस किस टाइप के लेटर होते हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, उसके अलावा उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है, एंड ऑल्सो कि जो लेटर रिटर्न जो चीजें होती है वो काफी इम्पोर्टेंट होती है। एंड आई ऑलवेज टेल दी स्टूडेंट्स और अदर पीपल व्हेन आई टेक दिस वर्कशॉप के रिटर्न कम्युनिकेशन जब भी होता है तो वो बहुत कॉशियसली होना चाहिए, बिकॉज इट कैन हर्ट यू, ओके, एनी टाइम. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, एंड नाउ वी कैन, इफ यू हैव द क्वेश्चंस, वी कैन टेक इट. Thank you. Thank you, sir. Dear participants, kindly post your questions in the Q&A box in your control panel, and we'll take one by one. Or if you want, I can unmute you. You can directly ask to sir as well. It will be more चाहिए तो आप एड्रेस करिए, आयशा मैडम आपको अनम्यूट कर देंगी, आप डायरेक्ट पूछ सकते हो. I know these topics are quite dry,
जो रिटर्न मामला होता है वो थोड़ा सा लोगों को अजीब लगता है, बट वी हैव टू, यस। All resumes be accompanied with the cover letter. Sayyid Hamza Ahmed has asked. Of course, every resume should be, attached with a covering letter. हर resume जो आप भेज रहे हो, आप जब भी resume भेजते हो वो जनरली अब आज के दौर में मेल के थ्रू भेजते हैं। इससे पहले पोस्टल से अगर लोग भेजते थे तो उसके साथ भी कवरिंग लेटर होता था। तो आप जो मेल लिख रहे हो, ओके, आपने सपोज लिखा है टू सो एंड सो कंपनी, ठीक है, @gsk.com, whatever जो भी होगा। अब वो कंपनी के जो आप मेल भेज रहे हो उसमें आप अपना रिज्यूमे अटैच करोगे, तो जो मेल का जो बॉडी है उसमें जो आप चीज लिखोगे दैट इज द कवरिंग लेटर। Is really grammar important for jobs? How can I correct my grammar in speaking? See, this is about something about English language. We are talking about grammar in terms of English, and when you are writing something, तो देखिए आजकल आपके पास में बहुत ही उम्दा तरीके हैं, बिकॉज इंटरनेट हैज बीन देयर, बट सिंस फ्यू इयर्स इंटरनेट इज देयर फॉर एवरीवन, ओके। आज हर एक के पास में जो है तो जेब में, पॉकेट में गूगल है, यूट्यूब है। इसका इस्तेमाल अगर हम सही जगह पे करें तो मुझे लगता है आप लोग बहुत इजीली जो है तो अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक समझ पाओगे। देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर वेरिन यू कैन डाउनलोड देम, यू कैन करेक्ट योर ग्रामर। और मैं बात कर रहा हूँ बेसिक ग्रामर की। हमको बहुत ज्यादा कोई हाईफाई इंग्लिश बहुत जल्दी बोलना जरूरी नहीं है, बट राइटिंग के लिए ऑफ कोर्स हम उतना समझ लें कि हमको टू द पॉइंट बातें हमारी बोलते आ जाना चाहिए, ओके। और उस लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ें, डेली रीड न्यूज़पेपर इन इंग्लिश, ओके। और जब आप उसको पढ़ते हो उसके सेंटेंसेस देखो किस तरह से बने हुए हैं। जो चीज नहीं समझ में आ रही तुरंत जो है तो अपना मोबाइल में गूगल निकालो, उसमें जो है तो उसका डिक्शनरी में मीनिंग देख लो, तो यू कैन अंडरस्टैंड। और इतने जोर से पढ़ना चाहिए कि हमारे कानों तक उसकी आवाज आए, ओके ओके। सो उससे ये होता है कि हमारा जो बोलना भी फास्ट होता है और हम चीजों को पढ़ते हैं। और लिखने की हैबिट डालिए, बिकॉज दिस जनरेशन, आप लोग अभी जो हो, अब आप लोगों के 2 साल से तो एग्जाम भी ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप लोग जो है तो सिर्फ टिक करते हो, क्लिक करते हो। तो इस सिचुएशन में आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है दैट यू शुड स्टार्ट राइटिंग, ओके। पेपर और पेन पे लिखना सीखिए, ओके। चेक करिए उसको, बार बार चेक करिए, करेक्ट करिए उसको, गोल में देखिए कि आपने सही चीज लिखी है या नहीं लिखी है। होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन। नेक्स्ट, If we are writing a letter to someone, it is a formal letter. If we are informing any combination person to any problem. सॉरी क्या बोल रहे मैडम, कहाँ लिखा है? Muhammad Imran Khan, the 5th question in the Q&A box. If we are writing a letter to someone, it is a formal letter. If we are informing, actually he wants to ask that if he's complaining somebody or if he's putting any complaint and he have to include more than one person in to be informed about that problem. So is it a formal letter or informal letter? This is my understanding. I'll request Muhammad Imran Khan if you can unmute yourself and you can directly ask to sir. Because your थोड़ा question is तो समझ गया इनकी बात कि ये पूछना चाह रहे हैं कि जो कंप्लेनिंग हम करते हैं क्या वो फॉर्मल लेटर है या इनफॉर्मल लेटर है, आई गेस, ओके। अब देखिए ये जो है ना कंप्लेनिंग का जो मामला होता है, अगर आप कंप्लेनिंग कर रहे हो और वो यूजुअली फॉर्मल वे में ही होती है, ओके। क्योंकि कंप्लेनिंग जो है, आप अगर सपोज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ये कंप्लेन कर रहे हो कि आपके घर में जो है तो बिजली नहीं आ रही है या लोड शेडिंग ज्यादा है, तो आप वो फॉर्मल वे में ही करोगे, ओके। आप उसको पर्सनल वे में किसी को बोल नहीं सकते। अगर आप बैंक में कोई कंप्लेंट कर रहे हो तो भी आप जो है तो वो कंप्लेंट कर रहे हो, लेकिन उसको फॉर्मल वे में ही आपको बोलना होगा। आप जो है तो किसी को डांट के नहीं बोल सकते हो। हाँ, आप जो है तो थोड़ा सा अपनी बात बता सकते हो कि दैट इज समथिंग विच इज रॉन्ग, बट आप किसी को जो है तो डांट नहीं सकते हो, बिकॉज द फॉल्ट इज नॉट फ्रॉम अ पर्सन, ओके। फॉल्ट जो है तो सिस्टम का है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I am asking regarding the issue for when I am informed our competent authority related some issue for in the office management. So this is a formal or informal? नहीं, this is a formal letter, sir.
दिस इज अ फॉर्मल लेटर। आप जो अप्लाई कर, आप जो ये किसी को हम अगर कंप्लेंट कर रहे हैं ऑफिस में या कहीं भी जगह, ये फॉर्मल लेटर की कैटेगरी में ही आएगा, ये इनफॉर्मल लेटर नहीं है। And one more thing, you also explain the formal letter, the body part of the letter. The firstly the recipient address and other things. Sorry, can you hear me? यस 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 प्लीज, आप पूछ लीजिए, आराम से पूछ लीजिए, हिंदी में पूछ सकते हैं आप। कि आपने जैसे अभी ये बताया था कि ये फॉर्मल लेटर हम लिख रहे हैं एज ऑफिशियल लेटर, जी बिकॉज आई एम वर्किंग इन AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। जी सर। ओके, तो एज अ सेक्शन ऑफिसर हूँ मैं, तो ये चीज मैं पूछ रहा था। आपने बताया था कि ऊपर जो है आप वो मेंशन करेंगे जो बंदा लेटर लिख रहा है जी तो ये सर, ये टेक्निक अब भी यूज हो रही है या कुछ चेंजिंग हुई है इसमें? सर, ये जो टेक्निक बताई गई है बच्चों के लिए, ये टेक्निक बेसिक टेक्निक ये बताई गई है कि ये अगर आप रिटन, मतलब कि आप अगर टाइपिफाइड लेटर अगर किसी को निकाल के भेज रहे हैं तो उसमें लिखना ज्यादा बेटर है उस तरह से। इवन ईमेल्स में भी हम आजकल इसको यूज करते हैं। ये जो पुरानी जो टेक्निक है इसको आज भी हम ईमेल में यूज करते हैं। मैं बहुत सारी जर्नल्स में कम्युनिकेट करता हूँ, बहुत सारी जगह पे कम्युनिकेट करते हैं हम लोग, तो हम लोग आज भी इस तरह से भेजते हैं चीजें, और फॉर्मल लेटर में इस तरह से भेजा जाए तो ज्यादा बेटर है। अदरवाइज जो तरीका है ईमेल्स का, उसके अंदर में हम वो पार्ट निकाल देते हैं। ईमेल्स में जो है तो मेरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पार्ट सिग्नेचर में आ जाएगा इस तरह से, तो वो चीज को निकाल दिया जाता है। अदरवाइज जो बाकी फॉर्मल लेटर्स हैं उसमें ये चीज को रखते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। Syed Hamza has asked, recently many resumes nowadays are colorful and have a photographer of the applicant. Photographer, I mean, he means to say photograph of the applicant. Is that necessary? What is the standard of a resume? रेज्यूमे के बारे में आप पूछ रहे हो? नाउ सी, About the picture, basically, these days the formats which are available on the internet, he wants to say that they contains photo also, and people post they use their photo, passport size photo, colored photo in the resume. So is it necessary, and what is the standard format of resume? रेज्यूमे का जो फॉर्मेट है, बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ प्रेजेंटेशन ऑन रेज्यूमे एंड वी यूजुअली टेक दीज इंटरव्यू टेक्निक्स इन रेज्यूम राइटिंग वर्कशॉप। सो उसके लिए आपको नेक्स्ट सेशन हो जाएगा वो भी। बट जैसे मैं आपको बताऊं कि जो रेज्यूमे है वो हमारा, जो हम प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग प्रोफेशनल्स के अलग अलग तरीके होते हैं रेज्यूम बनाने के। बट स्पेसिफिकली द प्रोफेशनल्स विच आर इंजीनियर्स, फार्माक्रेट्स, मेडिसिन से जो लोग ताल्लुक रखते हैं, लॉ से ताल्लुक रखते हैं, या कोई कंपनी में या कॉर्पोरेट में आप जब अप्लाई कर रहे हो, हमारा रेज्यूम एक तो कलरफुल नहीं होना चाहिए। ओके, पहली चीज, क्योंकि मैंने बाद में सुना कि कलरफुल वगैरह की बात जिक्र कर रहे थे कोई, कलरफुल होना नहीं चाहिए। ओके, रेज्यूम में सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए रेज्यूम। दूसरा चीज, उसके अंदर में कोई और ज्यादा चीजें हमको, मतलब जो आप बोल रहे हो वो नहीं डालना चाहिए। फोटोग्राफ डाल सकते हैं, आपका फोटो होना, वो आजकल बहुत सारे जो कंपनी है वो जरूरी भी इसलिए कर दिया है कि आपका फोटो रहता है तो वो मतलब आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी हो जाता है। तो फोटो रखना कोई गलत बात नहीं, आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। बट आइडियली रिकमेंडेड है कि आपका पासपोर्ट साइज जो सिंसियर फोटो है वो रखना चाहिए। ओके, मतलब आजकल जैसे इंस्टा वगैरह पे या कुछ कलरफुल कपड़ों में जैसे लोग फोटो रखते हैं, वैसे नहीं रखना चाहिए। सिंपल जो, जिसको हम फॉर्मल ड्रेसिंग में जो फोटो होता है वो रखना चाहिए। Thank you, sir. Anonymous attendee has asked, is it necessary to attach documents, mark sheet, diploma, etc. with resume and covering letter? It depends. It completely depends on the advertisement or the, where you are applying. Usually जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं या सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, तो वहां पर सारा का सारा आपको चीजें अप्लाई करना पड़ता है। उसके अंदर में सबसे पहले जो है तो आपका रिज्यूमे होगा, सॉरी, सबसे पहले कवरिंग लेटर होगा, उसके पीछे आपका रिज्यूमे होगा, उसके पीछे में जो है तो आपका जो करंट मार्कशीट होगा, सपोज आपका फाइनल ईयर बीई का मार्कशीट है वो होगा, उसके बाद में आपका HSC होगा, उसके बाद में SSC होगा। इस तरह से वो पूरा बंच बना के किया जाता है। अदरवाइज जो कंपनीज में जिस तरह से अप्लाई होता है उसमें आपका रिज्यूमे जनरली ईमेल के थ्रू अगर आप भेज रहे हो तो उसमें आपका रिज्यूमे जो है तो आप अटैच करोगे, बाकी कवरिंग लेटर जो है तो ईमेल की बॉडी में आप लिखोगे एंड देन यू आर गोइंग टू सेंड इट।
And when the company is asking you to have these things, usually in the time of interview वो लोग मांगते हैं, तो उस वक्त आपको रखना चाहिए. मगर कई सारे जैसे कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, या बहुत सारे कॉलेजेस जो है तो प्राइवेट भी होते हैं, वो भी जो है तो इस तरह से मांगते हैं, तो उस समय पूरा भेजना पड़ता है उनको. ओके, सारे जो क्रेडेंशियल्स है आपके वो भी अटैच करने पड़ते हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन दी वे कि मैंने कंपनीज में नहीं देखी ये चीजें. कंपनीज में वो लोग एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू दे आस्क योर सर्टिफिकेट्स एंड ऑल. What is the etiquette? What etiquette should be followed when talking over text, especially when talking to higher authorities? Also, Parvez has asked. सॉरी, क्या क्या कह रहे हैं मैडम? What etiquettes should be followed when talking over text? ओवर टेक्स्ट? हाँ, over text, especially मतलब when messages. talking to higher authorities. ओके ओके ओके. नो, ऑफ कोर्स, देखिए टेक्सटिंग करने के लिए भी तरीका होता है. ओके, क्योंकि वो शॉर्ट मैसेजेस हैं, चाहे आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हो या एसएमएस के थ्रू भेज रहे हो, बट स्टिल इट इज अ रिटन काइंड ऑफ कम्युनिकेशन. उसमें भी हमको जहां तक हुए वहां तक, अगर हम कोई सुपेरियर अथॉरिटी को भेज रहे हैं या किसी सीनियर को भेज रहे हैं, तो हमको वहां पर भी लैंग्वेज को सभ्य रखना चाहिए, लैंग्वेज को फॉर्मल रखना चाहिए, लैंग्वेज को जो है तो सोबर रखना चाहिए और तरीके से भेजना चाहिए. अब शॉर्ट मैसेजेस के लिए, उसके लिए मैं एक एक्चुअली बात करता हूँ, उसके लिए वर्कशॉप कुछ मैंने दिए है कुछ जगह पर के, जो आजकल सो कॉल्ड सोशल मीडिया है, उसके चलते हुए जो काम हो रहा है, तो उससे हम किस तरह से हैंडल किया जाए. बट दैट इज कम्प्लीटली अ डिफरेंट सिनेरियो. बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप लोग जब भी अपने मैसेजेस भेजें तो बड़े सोच समझ के भेजें उसको. How much lengthy should resume be? रेज्यूमे, ओके, रेज्यूमे मेरे ख्याल में ज्यादातर क्वेश्चंस तो रेज्यूमे के आ रहे हैं. आयशा मैडम, हमने प्रोग्राम जो ये वेबिनार रखा था, दिस इज बेसिकली फॉर लेटर राइटिंग. रेज्यूमे के लिए तो एक सेपरेट हमारा सेशन हम देते ही हैं, ये स्पेशल रखवाया था लेटर राइटिंग के लिए. वैसे रेज्यूमे जो जनरली मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो स्टेज में आप हो आज, यहाँ पे जो है तो रेज्यूमे जनरली 2 पेजेस का होना चाहिए, 1 या 2 पेज का, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बिकॉज रेज्यूमे एक्चुअली बहुत कंसाइज डॉक्यूमेंट है. दूसरा एक जो होता है जिसको हम सीवी कहते हैं, विच इज नोन एज करिकुलम विटाए. नाउ करिकुलम विटाए इज समथिंग विच इज अ मोर डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, और वो जो होता है वो प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जो मतलब जिनको 5-10 साल 12 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस होता है, 8-10 साल के ऊपर वाला, उन लोगों का सीवी बनता है. और जो रेज्यूमे होता है वो जनरली फ्रेशर टू 2-3 इयर्स पीपल जो होता है उनका बनता है. तो उसमें जनरली एकेडमिक उनकी जो उपलब्धियां होती है, एकेडमिक डेवलपमेंट्स होते हैं, वो आते हैं. उसके अलावा को करिकुलर एक्टिविटी में अगर कोई क्विज कंपटीशन या कोई पोस्टर प्रेजेंटेशन में कुछ किया है वो आ जाएगा, कुछ स्पोर्ट्स में अचीवमेंट है वो आएगा. बाकी उसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती है. तो आइडियली जो रेज्यूम होता है वो अ कपल ऑफ पेजेस ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए. Is it necessary to mention personal details, that is marital status, blood group, DOB on resume? Oh my God, again the resume part is coming. resume मैडम हमने इसको टच ही नहीं किया है टॉपिक को. अगर रेज्यूमे हम लोग टच करेंगे तो उसका पूरा फॉर्मेट आपको बता देंगे कि एक रेज्यूम कैसे होना चाहिए. आई गेस आयशा मैडम ये नेक्स्ट वीक है इनका सेशन, या कभी है नेक्स्ट डेट पर? No sir, actually we are not having the session as per our modules here in this college. They have given their own modules, so the written communication is just for all these, and then they have communication skills and a personal assessment test and interview techniques. Okay, because resume it has not been mentioned, so we have not touched it, but resume writing is something which is my core part. So उसके लिए हम सेशन एक अलग लेते हैं, और इफ यू आर Definitely sir, definitely. अगर ये चाहे सर रमीश सर, तो हम उसके लिए स्पेशल सेशन वी कैन पुट wherein we can explain all the parts of a resume, start from the top to the bottom. हम पूरा resume का एक मेरा एक है पूरा एक वर्कशॉप है उसके लिए, so I can devote it. Of course sir. The next question is Muhammad Imran Khan. Will I get any certificate for attending this workshop? From Muhammad Imran Khan from AMU. Sir, if you attend all the 4 sessions, inshallah you will be getting the certificate.
Anonymous attendee has asked, sir, what is cold messaging or emailing? Sorry? Cold messaging or emailing? What is cold messaging or emailing? Emailing. Cold messaging, sir. Cold messaging. Am I not clear today? ये ईमेलिंग वगैरह जो है आजकल जो भी मैसेजिंग होती है वो ईमेल के थ्रू ही होता है और जितने भी लेटर्स हम भेजते हैं वो ईमेल के थ्रू ही जाते हैं फाइन और बट स्टिल जैसे मैंने कहा कि ये रिकॉर्ड में चला जाता है अगर आप कोई कंप्लेंट भी भेज रहे हो ईमेल के थ्रू आप चाहे कंप्लेंट वाला लेटर भेजो तो वो भी ईमेल के थ्रू ही जाएगा आज आप कोई एप्लीकेशन अगर करो तो वो भी ईमेल के थ्रू ही जाएगा आप अगर कोई चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हो वो भी ईमेल के थ्रू ही जाएगा so all the things are going emailing is a source of it is a source कि आप किस source से भेज रहे हो now letter could be sent by postal could be sent in hand in hand or could be sent by email This was the last question in the Q&A box, and Syed Hamza has told that yes, we will be interested in attending the resume writing workshop. So, Mr. Hamza, kindly give this feedback to your management so that they can arrange one such session for you all. If anybody wants any other question, wants to ask, please write it down. Otherwise, we'll move forward. Dear students and attendees, I have shared a link of feedback of today's session. I request you all kindly give your valuable feedbacks on that link. It will help us improve our session, and your feedback is very, very valuable to us. Where faculty members they can approach to Miss Aisha Ramesh sir. So if you need any sessions on resume writing, we can definitely deliver whenever the time comes. So इसके दे देंगे Sure, Rahil sir. Sure, Rahil sir. के अंदर में मतलब स्टार्ट टू एंड जो होता है हमारा जो सेशन होता है यूजुअली मैं अगर थोड़ा वहाँ पे यहाँ पे बता दूं अगर मैं बता सकता हूँ अभी It will be better, sir, if we take a whole session on that, because already we are quite ahead in the session, and it is about to be over. So I will really thank Rahil sir for an enlightening and entertaining presentation. Zamir sir, would you like to add something? Well, we are extremely thankful to Rahil sir and the AMP for taking this session and guiding our students about these valuable training session. Now I request our one of the members of training and placement, Professor Shahid Arshad, who is also assistant training and placement officer, to please propose vote of thanks. Okay, on behalf of Anjuman College of Engineering, I would like to extend my sincere thanks to the entire team of AMP, Aisha ma'am, Rahil sir, and we are extremely looking forward for this kind of session in future as well. Thank you so much. Thank you very much. I also thank all of the attendees to be present here and take out their time and attend this session. We are looking forward for some more such wonderful sessions with your college, inshallah. And I'll wind up the session with a short dua. Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayka. O Allah, you are pure. I praise you and testify that there is none worthy of worship besides you. I seek forgiveness and pardon from you. If there was a good talk in the gathering, I pray you accept it. And if there was a vain talk, then please forgive us. Thank you so much, all of you. Jazakallahu khairan kaseera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.